Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. Today I am here with the quiz, and this quiz is based on the chapter Respiration in Organisms. So let's start our quiz. And first question is the process in which food is broken down in the presence of oxygen to release energy is known as. एक प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रोक डाउन होता है. So this process is known as respiration. एक्चुअली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर द पार्ट ऑफ डैश प्रोसेस. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो किस प्रोसेस का पार्ट है? तो guess your answer. In this slide you can see there are two diagrams, and first is write down here inspiration. This diagram is inhalation, okay, and this expiration means exhalation. तो ये exhalation और inhalation किस process का part है? Actually we have learned there are two types of respiration: external respiration and inhalation internal respiration. So these two processes are the part of external respiration. Okay, ये external respiration जो nostril के through air लेते हैं और lungs तक जाती है और lungs से बाहर आना, ये सब आपका inhalation और exhalation external process में include होता है. Okay, next, respiration process takes place inside the cells of our body is known as. ठीक है, अभी एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या था कि नोज से एयर अंदर जाती है ऑक्सीजन और लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स के बाद क्या होता है वो चीज नहीं पता इसमें. ठीक है, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या था, लंग्स से बाहर आना. तो ये दो प्रोसेस इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. बट अंदर क्या होता है वो आपका आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स. ठीक है, ऑक्सीजन जब सेल्स के अंदर जाती है वहां पर जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैकिया और विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स called bronchi, and each bronchus further divides into tiny branches called. Okay, so here it is diagram given. This pipe is known as windpipe or trachea. You can see it is dividing into two parts. ठीक है, और ये जो two parts होते हैं ये आपके होते हैं bronchi, and singular is bronchus. You can see here it is written bronchus. और bronchus जब further divide होता है तो it forms bronchioles, tiny tubes that are known as bronchioles. So your answer will be bronchioles. Next question, a large flat muscle is located at the floor of the chest cavity called. Okay, तो flat muscle एक muscle होती है जो कि chest cavity में नीचे होती है. तो this is a that flat muscle and it is known as, you are to tell name. So you can see here diaphragm, its name is diaphragm. It is a muscular part. Okay, it moves during the inhalation and exhalation. Okay, and provide chest cavity inside the lungs. It provide increase or decrease chest cavity for inhalation and exhalation. Next question, the number of times air is inhaled or exhaled in a minute is called. जो एक मिनट में inhalation और exhalation के process में कितनी बार inhalation होता है और कितनी बार exhalation होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ओके, expansion नहीं हो सकता, contraction नहीं हो सकता और inhalation तो नहीं हो सकता क्योंकि ये process का नाम है. और ये जो है आपका breathing rate, its answer is breathing rate. जो एक मिनट में कितनी बार एयर ऑक्सीजन आपने इनहेल की और कितनी बार एक्सहेल की, इसका जो कैलकुलेशन होता है उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans exchange of respiratory gases CO2 and O2 takes place in, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या फिर हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये किसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आते हैं या फिर जाते हैं? सो alveoli, trachea, glottis, epiglottis are the options for this question. So you can see here it is a diagram. CO2 out हो रही है और O2 in हो रही है blood capillaries में जाके, यहाँ से exchange of gases हो रहा है, and this part is known as alveolus. Alveolus is the singular word and alveoli is the plural word for the alveolus. So answer is alveoli. Our next question is, woody stem have openings, small openings on their bark called dash for breathing. जो woody stems होते हैं, जो trees की stems होती हैं, woody होती हैं, उनमें छोटे छोटे से small openings होते हैं, तो ये breathing के लिए use होते हैं. तो आपको बताना है इन openings का name क्या होता है. Actually in this diagram you can see these openings easily. Okay, this and this. So what are the name? स्टोमेटा तो लीव्स में होते हैं. ओके, लेंटिसेल्स इसका आंसर है, क्योंकि लेंटिसेल्स इनको बोला जाता है. स्पाइरेकल्स जो होते हैं आपके इंसेक्ट्स में होते हैं. ऑपरकुलम आपका फिशेस में होता है. ओके, सो राइट आंसर इज लेंटिसेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू डैश. जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टोमेटा इज द पार्ट ऑफ प्लांट्स and lenticels is also the part of plants, and operculum, as you know, it is found in fishes. So spiracle is the right answer for this question. जो insects होते हैं इनमें spiracles के through respiration होता है, और spiracles जो होते हैं ये आपके छोटे छोटे से pores होते हैं, holes होते हैं. The oxygen absorbed by blood binds with the hemoglobin and forms. जो ऑक्सीजन आपकी एब्जॉर्ब की जाती है एल्वियोली के थ्रू, फिर वो जब ब्लड में मिक्स होती है तो क्या बनाती है, उसका क्या नेम होता है? ठीक है, ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ फूड. मीन्स ग्लूकोज जो होता है एक तरह का जो फूड हमने लिया है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है. ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ, ये आपका एनर्जी गिविंग होता है, और ये जो आपके ये ग्रोथ के लिए यूज होता है. एमिनो एसिड्स आपका प्रोटीन जब जो आपका फैट्स होते हैं, फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होता है तो एमिनो एसिड बनता है. तो नेक्स्ट आपका है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी इज वर्ड टेकन फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन. सो when they combine they form oxyhemoglobin. So our next question is, alcohol is produced in the process of dash. अल्कोहल किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज विद द एनर्जी. सो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकता. एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका अल्कोहल फॉर्म होता है, क्योंकि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, और इसमें आपका बनता है अल्कोहल. सेलुलर रेस्पिरेशन आपका सेल्स के अंदर होता है, एक्सटर्नल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्मेंटेशन इज द अनदर नेम ऑफ डैश. फर्मेंटेशन एक जो प्रोसेस है ये किसका नेम है? एक्चुअली ये एक तरह का दूसरा नेम है जो ये इनमें से प्रोसेस दे रखी है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर है. Okay, so fermentation is also known as anaerobic respiration. Next question, we get muscle cramp during heavy exercise due to the accumulation of dash. जो मसल क्रैम्प्स हो जाता है एक्सरसाइज के या रनिंग के टाइम में एथलीट्स को, तो वो क्यों होता है? उसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है एक टाइप के प्रोडक्ट का. तो वो प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमिनो एसिड्स है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड.
ठीक है। एमिनो एसिड तो फैटी एसिड का एक पार्ट है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड आपका आंट्स में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड जो होता है एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और इसका अकुमुलेशन होने लग जाता है मसल्स में, जिसकी वजह से जो एथलीट्स होते हैं उनको मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम हो जाती है। In the next question, dash can respire anaerobically and produces alcohol. Therefore, it is used in wine and beer industries. Actually, ये जो names हैं, इनमें से एक नेम है इसका, और इसमें है कि ये जो भी आपका एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनेरोबिकली रिस्पायर करता है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है एल्कोहल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? एल्कोहल प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, बट जो एल्कोहल होता है वो जिसको आप शराब बोलते हैं वो एल्कोहल की ही एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसको यूज किया जाता है वाइन और बियर इंडस्ट्री में। तो अमीबा नहीं हो सकता क्योंकि अमीबा आपका एक तरह का वाटर में रहने वाला एक एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया भी आपका नहीं हो सकता। पैरामीशियम भी एक अमीबा की तरह ही होता है जो वाटर में रहता है और मॉइस्ट एरियाज में रहता है। इसका राइट आंसर है ईस्ट। तो जो ईस्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईस्ट एक ग्रेन्यूल पार्ट की तरह होता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर में कि ये एक तरह से क्या करता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो जब इसको वाटर या सुगर के साथ घोला जाता है, सुगर सोल्यूशन में जब इसको घोला जाता है तो ये बडिंग करने लग जाता है और बहुत ही तेजी से इसमें रिप्रोडक्शन होता है और इसकी ग्रोथ होती है। तो इस समय क्या होता है कि ये रेस्पायर भी करता है, रेस्पिरेशन होता है इसमें। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये अल्कोहल फॉर्म करता है, इसलिए इसका यूज वाइन और बियर इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ वॉर्म रेस्पायर थ्रू। यू कैन सी इट इज अ अर्थ वॉर्म एंड इट लिव्स इन द सॉइल। सॉइल में रहता है और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। ठीक है, तो ये किस तरह से रेस्पायर करता है, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है? गिल्स तो आप जानते हैं कि फिशेज में होता है। लंग्स होते हैं जो लैंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में भी होता है। स्किन के थ्रू ये कर सकता है क्योंकि जो स्किन होती है, इसके स्किन में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनसे कि एयर अंदर और बाहर होती रहती है। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट जो सॉइल होती है इसमें एयर भी प्रेजेंट होती है वाटर के साथ, तो उस एयर को ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और स्पाइरेकल्स तो आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स में होता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्किन। Our next question is, the amount of energy released in anaerobic respiration is much less compared to dash। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होती है वो काफी कम होती है। किससे कम होती है? तो ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन ही आंसर होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। ठीक है, और क्यूटेनियर रेस्पिरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू स्किन। ठीक है, सेलुलर सेल्स में होता है, इनसाइड द सेल्स, एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एज यू नो, inhalation and exhalation. Next question, frogs respire through dash during the tadpole stage. Actually in this diagram you can see these are eggs of frog. ठीक है, eggs के hatching से ये लार्वा निकलता है। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा जब डेवलप होता है तो आप देख सकते हैं इसकी एक टेल भी है। ठीक है, लेकिन वैसे आपने देखा होगा कि फ्रॉग को टेल नहीं होती है। तो जब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब इसकी ये लार्वा फॉर्म में होता है तो ये वाटर के अंदर रहता है। वाटर के अंदर ये रेस्पायर करता है गिल्स के थ्रू। ठीक है, जब वाटर के अंदर होता है तो जैसे फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है उसी तरह से ये रेस्पायर करता है। ठीक है, तो लंग्स तो आपको पता है लैंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, स्किन में आपके आ जाते हैं ये, जैसे आपका लीच हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गया, स्पाइरेकल्स होता है
इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज गिल्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डैश। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन करती हैं। आपको पता है प्लांट्स जो रेस्पायर करते हैं स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, बट स्टोमेटा आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीव्स, तो ये एरियल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपकी रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, तो वो किस तरह से रेस्पायर करती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्टोमेटा तो लीव्स में होता है, लेंटिसेल्स इट इज प्रेजेंट ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। स्पाइरेकल्स जो होता है ये आपका इंसेक्ट्स में होता है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी रूट हेयर। बाय रूट हेयर, थ्रू रूट हेयर प्लांट्स रूट टेक respiration takes place. Our next question, next and last question is diaphragm moves upwards and downwards during inhalation and exhalation to increase or decrease, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें डायाफ्राम जो एक आपकी मस्कुलर पार्ट है, फ्लैट मसल होती है लंग्स के नीचे, तो ये क्या करती है, ये मूव करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये क्या करती है, या तो इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है। किसको करती है, चेस्ट कैविटी को। ऑब्वियसली वी नो आवर लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी, ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे चेस्ट कैविटी हमारे एक बोनी पार्ट है, बोन से बना होता है, इसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें एयर इनहेल हो या उनसे एयर एक्सहेल हो, बाहर जाए, इसके लिए जो फ्लैट मसल होती है वो चेस्ट कैविटी को या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चेस्ट कैविटी। And these 20 questions I have taken from the chapter of respiration in organism. I hope you enjoyed this quiz. So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. We will meet in next video. Thank you and bye bye all of you.